Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? Very good evening everyone. Please do join everyone so we can start at today's class that is all about collection of data. Please join everyone. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. Please join everyone so we can start at today's class that is all about collection of data. मेथड ऑफ कलेक्शन की हम लोग बात करेंगे. जल्दी से ज्वाइन करिए सभी लोग. Please join everyone. Please join everyone so we can start at today's class. We are waiting for another 2 minutes so we can start at today's class. That is all about collection of data. Today's topic is all about collection of data. आज हम लोग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की बात करेंगे. प्लीज ज्वाइन एवरीवन सो वी कैन स्टार्ट एट टुडेस क्लास. जहां पर भी आप लोगों को कोई क्वेरी लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा. So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, FMTR, UP Government. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates for UGC NET in Management, Commerce and Economics. वैसे तो कई बार है, but in the last few years I have been qualified 4 times NET and JRF in Commerce and Management. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, CR, UGC Care, UGC Listed. MBA International Business, MCOM IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic for presentation that is all about collection of data. कलेक्शन ऑफ डेटा की आज हम लोग बात करेंगे. कलेक्शन ऑफ डेटा. तो व्हाट इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा. जैसे आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन कोचिंग्स में हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग का बेसिक रिसर्च क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं, रिसर्च डिजाइन बहुत डिटेल में पढ़ाया, लिटरेचर रिव्यूज के बहुत सारे टाइप्स पढ़ाए, आपको सैम्पलिंग पूरा पढ़ा दिया. नाउ आज बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा या मेथड्स ऑफ डेटा collection. What is all about the method of data collection? So as we know कि data refers to the information of fact. Often researcher understand by the data only numerical figure. It also includes, data is not all about the numerical figures. It also includes the facts and non-numerical informations. It can be in a qualitative in a nature. It can be in a quantitative in a nature also. Data could be broadly classified एज ए प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. तो डेटा को हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. तो आप लोग लाइन पे बने रहिए. अगले आधे घंटे तक की 30-35 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा. प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. तो व्हाट डू मीन बाय द प्राइमरी डेटा एंड व्हाट डू मीन बाय द सेकेंडरी डेटा. Primary data is all about, primary data is known as the data collected for the very first time through the field study. Such data are collected with specific set of objectives to assess the current status of any variables studied by doing certain surveys
it can be collected by anyone. So we have the numerous number of primary data collection methods. सीधी भाषा में समझिए कि whatever the data which we are collecting in the very first time, या दो that data that is now fresh in a nature, ऐसे सभी डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं. वही बात करेंगे सेकेंडरी डेटा. Whatever the data which is already available in the market in the form of books, in the form of newspapers, in the form of articles, websites, journals, theses. So we have different sources for secondary data also. तो प्राइमरी डेटा बच्चा वो होता है ऐसा सारा डेटा जो पहले से जो पहली बार आप कलेक्ट कर रहे हैं, फ्रेश डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है. और ऑल दोज डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा के कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम लोग पहले बात करेंगे. प्राइमरी डेटा के कौन कौन से मेथड्स होते हैं. तो प्राइमरी डेटा के ऑफनली कुछ कॉमन मेथड्स हैं. क्वेश्चनर, शेड्यूलिंग, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ठीक है. सेल्स फोर्स फीडबैक फॉर्म भी हो सकता है. फीडबैक फॉर्म, सेल्स फोर्स ओपिनियन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड मैकेनिकल डिवाइसेस. आप लोग जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए. तो आप लोगों ने कहा तो दैट इज द ओनली रीजन आई हैव टेकन द क्लासेस. आज क्लास लिया, अदरवाइज आई थिंक एवरीवन इज बिजी इन द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली. So even though you people have been told, that is the only reason I have scheduled the today's class. So please do join everyone so we can start the today's class further. So this is all about the what we call collection of data के types. Questionnaire, scheduling, interview, observation, feedback form, sales force opinion, projective techniques, and mechanical devices. So we will start with the questionnaire. What is all about the questionnaire? So we have the numerous number of the questionnaire. हर क्वेश्चनर भी हमारा कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का क्वेश्चनर होता है. कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे. ठीक है. तो कौन कौन से 5 टाइप होते हैं देखिए. पहला हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन. कौन सा? ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो है क्लोज एंडेड. थर्ड हो गया मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइसेस. फोर्थ हो गया डाइक्टोमस. फिफ्थ हो गया, ठीक है, पिक्चोरियल. अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जहां पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंडिया के बारे में लिखिए, अपने बारे में लिखिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड. एंड इन ओपन एंडेड क्वेश्चन वी आर गिविंग द फुल फ्रीडम टू द रिस्पोंडेंट. क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, नेट के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिसर्च के ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन से क्वेश्चनर के कौन से मेथड्स में आप पूरी फ्रीडम देते हैं किसको? रिस्पोंडेंट को. तो इन ओपन एंडेड मेथड्स, इन ओपन एंडेड क्वेश्चनर वी आर गिविंग द फुल फ्रीडम टू द रिस्पोंडेंट कि रिस्पोंडेंट कैन एक्सप्रेस फ्रीली. ठीक है, रिस्पोंडेंट पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चनर. वी विल टॉक अबाउट द क्लोज एंडेड क्वेश्चनर. क्या होता है? जहां पर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ. तो दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड. आप यू आर गिविंग सर्टेन ऑप्शंस और एक ही ऑप्शन लगा सकता है इंसान, एक ही पे टिक कर देता है. जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको क्लोज एंडेड बोलते हैं. जहां पर आप पूरी फ्रीडम नहीं दे रहे हैं उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड. कि एक आपने क्वेश्चन पूछ लिया, 4 5 3 2 4 5 6 ऑप्शन दे दिए आपने और यू आर गिविंग द ओनली वन चांस, आप एक ही उसको चांस दे रहे हो रिस्पॉन्ड करने का, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड. फिर बात आता है बच्चा मल्टीपल चॉइस. व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल चॉइस?
मल्टीपल चॉइस होता है कि जहां पर कि एक से ज्यादा ऑप्शन, मतलब आपके पास दो वन आंसर आता, पेपर में आता नहीं 1 और 2, 2 to 3, 3 to 4, या 1 to 3 या ऑल ऑफ द अबव, जहां पर यू आर गिविंग द फ्रीडम टू द रिस्पोंडेंट कैन मार्क द आंसर मोर देन वन, जहां पर रिस्पोंडेंट को एक से ज्यादा आंसर मारने का आंसर देते हैं आप मौका देते हैं, उसको मल्टीपल चॉइस बोलते हैं, जहां पर एक से ज्यादा इंसान टिक कर सकता है। डाइक्टोमस, डाइक्टो, DICHTOMOUS, DICHTOMOUS, डाइक्टोमस। डाइक्टोमस क्या होता है? डाइक्टोमस में जब हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं, या यस और नो, ट्रू फॉल्स, मतलब इंडिया इज द कैपिटल ऑफ, सॉरी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, पॉजिटिव और निगेटिव, जब ऐसे क्वेश्चन ऐसा डेटा कलेक्ट करना होता है जहां पर केवल आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं केवल दो होते हैं, वेदर इट्स यस और नो, पॉजिटिव और निगेटिव, और ट्रू और फॉल्स, ऐसी जगह पर डाइक्टोमस क्वेश्चनियर का यूज करते हैं। कौन सा? डाइक्टोमस, पॉजिटिव निगेटिव, यस नो, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दो ही ऑप्शन, केवल दो ही होंगे। सबसे कम फ्रीडम आप इसी में देते हैं। पिक्चोरियल, एक फोटो दे दिया, पिक्चर बना दिया, उसके नीचे ऑप्शन दे दिया कि ये पिक्चर कहाँ है, जैसे ताजमहल बना दिया यहाँ पे, बोले वेयर दिस पिक्चर इज लोकेटेड, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, ठीक है। इसको बोलते हैं पिक्चोरियल, कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोग्राफ, यू आर जजिंग, यू आर गिविंग द आंसर ऑफ दैट सर्टेन क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड पिक्चोरियल। दोबारा बता रहे हैं, ओपन एंडेड, आप यू आर गिविंग द फुल फ्रीडम, पूरी फ्रीडम दे रहे हैं आप रिस्पोंडेंट को। समरी टाइप का क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसको ओपन एंडेड बोलते हैं। क्लोज एंडेड में आपने 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन 4 दे दिए, लेकिन आपको एक ही इंसान उसमें 4 में से एक ही को टिक कर सकता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। मल्टीपल में भी ऑब्जेक्टिव होगा, बट द रिस्पोंडेंट कैन पुट मोर देन वन आंसर। डायक्टोमस में देयर विल बी ओनली 2 ऑप्शन, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और यस और नो की बात करते हैं बच्चा। एंड पिक्चोरियल इज ऑल अबाउट फोटोग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ द फोटोग्राफ यू हैव टू बी मार्क द आंसर, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनियर। समझ गए? नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चनियर के बाद, नेक्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू मीन बाय द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। पता ही है कि ऑब्जर्वेशन यूज वेरी फ्रीक्वेंटली where the collection of data through other method is difficult. For example, अगर बात करें, it is not always possible to conduct the interview, तब जैसे जहां पर बहुत बड़ी जनता है और सभी लोगों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, वी कैन गो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड यू कैन ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो देयर आर ओकेजन व्हेन द नो अदर मेथड कैन बी अडॉप्टेड फॉर द डेटा कलेक्शन, ऐसी जगह पे जहां पर और कोई डेटा कलेक्शन का मेथड यूज प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, ऐसी सारी जगह पर हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में भी 5 टाइप की होती है: स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेटिव या पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, अनकंट्रोल्ड। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जब हम लोग ऑब्जर्वेशन एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस टेक प्लेस स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्लान और डिजाइन प्रिपेयर्ड इन एडवांस, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इन ऑब्जर्वेशन। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको कहीं पे किसी शॉपिंग मॉल का, किसी हॉस्पिटल का जाके आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको पहले से एक लिस्ट डाउन बनी हुई, एक लिस्ट बनी हुई है कि इस हॉस्पिटल में जाके ये सब चीजें हमको मैनेज करनी है, ये सब चीजें हमको देखनी है कि वॉशरूम कैसा है, डॉक्टर्स कैसे हैं, ओपीडी वहां पर कैसी है, काउंटर कैसा है, कैश काउंटर कैसा है, वहां पर पार्किंग की फैसिलिटीज क्या है, लिफ्ट है कि नहीं है, स्टेयर्स कैसी है, क्लीन का सफाई कितना है। सो एक पहले से लिस्ट डाउन बना हुआ है एंड यू जस्ट नीड टू विजिट दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल एंड यू हैव टू बी ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। मतलब all those observation, when the observation take place strictly in accordance with the plan or a design prepared in advance, it is called structure observation. अनस्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई एडवांस प्लानिंग नहीं, हमने आपको सीधे बोल दिया जाइए हॉस्पिटल में जाइए, 10 चीजें नोट करके लेके आइए, वो आपकी मर्जी है कि क्या 10 चीजें नोट करके लेके आ रहे हैं। वहां पे डॉक्टर्स की नोट करके लेके आ रहे हैं, नर्स को नोट करके लेके आ रहे हैं, पार्किंग नोट करके ले रहे हैं, क्लीनिंग सफाई नोट करके लेके आ रहे हैं, मेडिसिन नोट करके लेके आ रहे हैं, मशीन्स नोट करके लेके आ रहे हैं। I have been told you कि you just need to note down only 10 things.
You just need to note down the only 10 attributes. तो हमने I haven't told you कि what actually you have to do. तो ऐसी जगह पर जब कुछ प्लान नहीं होता तो आप कुछ भी अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यू कैन नोट डाउन एनीथिंग्स. इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है जब एक जो रिसर्चर होता है वो खुद पार्टिसिपेट करता है. हमने कई बार एग्जांपल दिया कि आप रिसर्च कर रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द हिल स्टेशन या इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल्स हु आर लिविंग ऑन द हिल स्टेशन. ऐसे लोगों की साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं जो हिल स्टेशन पे रह रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसी है. तो आपको कहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन में जाके क्वेश्चन फिल करवाएंगे तो समझ में नहीं आएगा. तो व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, यू हैव टू बी इन्वॉल्व देमसेल्फ. आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. यू हैव टू बी गो देयर और अपने आप को इन्वॉल्व करके, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट. जब रिसर्चर, जैसे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्या है कि रिसर्चर नहीं भी है तब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन, हमने किसी को दे दिया कि क्या आपको ऑब्जर्वेशन करके लाना है, वो ऑब्जर्व करके चला आया. अनस्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर हैज टू बी इन्वॉल्व हिमसेल्फ, वो खुद को हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो जब जहां ऐसी रिसर्च डिजाइन, जहां ऐसी ऑब्जर्वेशन जहां पर रिसर्चर खुद से इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. नॉन पार्टिसिपेंट दिस इज मेथड which the observer remain detached from whatever is happening around and doesn't involve himself in any activity take place. He is present only to observe, not to take part of the activities. मतलब जैसे हम बहुत एक कॉमन एग्जांपल देते हैं कि कोई कॉलोनी में क्राइम हो गया, पुलिस वाला सिविल यूनिफॉर्म में आता है, और कोई पुलिस वाला सिविल यूनिफॉर्म में आता है, क्या पता कि वो पुलिस वाला है कि नहीं है. तो आया ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन अपनी एक्चुअल कंडीशन से डिटैच रहता है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करके चला गया. इसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेंट. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में कि सबसे ज्यादा बायसनेस जो होती है वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में होती है. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वीज को भी पता होता है कि somebody is going to be calm and they will observe to you. That is called controlled observation. ठीक है. In this method or observation, the observer perform his work in an environment or situation which is very much planned. जैसे हमने आपको बोल दिया कि हॉस्पिटल्स का सर्वे होना है और हॉस्पिटल का ऑडिटिंग होनी है, स्कूल का ऑडिटिंग होना है, कॉलेज का ऑडिटिंग होना है. तो पहले से आदमी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आपको सफिशिएंट पर्याप्त समय मिल जाएगा. तो व्हाट एक्चुअली यू कैन डू, आप अपने अकॉर्डिंगली चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं. जो चीजें नहीं होंगी, जो भी कमियां होंगी, जो भी आपकी जो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तो यू कैन ओवरकम दोज शॉर्टकमिंग्स. दैट इज द ओनली रीजन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, बायसनेस होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज अ इंटरव्यू. एनी डाउट, किसी कोई डाउट हो तो बताइए दोनों में से, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर में. नेक्स्ट इज इंटरव्यू. Anyone is having any doubt, please you tell me. चलो कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अंजलि, रोहित, पीयूष. यस, इंटरव्यू तो पता ही है कि 1 to 1 होता है. कि वन इज द वेरी ओल्ड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा इज कॉल्ड इंटरव्यू मेथड. इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड एक्चुअली. इंटरव्यू मेथड इन्वॉल्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीटिंग विद द रिस्पोंडेंट. ठीक है, अब इनडायरेक्ट इंटरव्यू में कौन कौन से मेथड होता है वो देख लीजिए. डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट 2 होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर. यहां पर भी होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड, फोकस इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव एंड टेलीफोनिक. डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है कि इसमें भी क्वेश्चन पहले से प्लान होते हैं. कि इन दिस टाइप ऑफ द इंटरव्यू द पर्सन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन डिसाइड इन एडवांस द नेचर ऑफ द नेचर क्या होगा क्वेश्चंस का, स्कोप्स क्या होता है.
तो एक पहले से ऐसा इंटरव्यू जिसमें क्वेश्चंस पहले से प्लान होते हैं, सिस्टमेटिक, जो बहुत हाई लेवल के इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें पूरी ग्रुप ऑफ द एक्सपर्टीज होती है और एवरीवन इज हैविंग देयर ओन एक्सपर्टीज इन ओन एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। तो व्हाट एक्चुअली वी डू, वहां पर लोग स्ट्रक्चर इंटरव्यू के तहत एक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, सिस्टमेटिक में क्वेश्चन चलते हैं और उसको लोग भी रिव्यू करते हैं, फिर उसको फीडबैक देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चंस आर वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दोनों का टाइम बचता है, रिस्पॉन्डेंट का भी टाइम बचता है और हमारा इंटरव्यू का भी टाइम बचता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू। फिर हम लोग बात करेंगे अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि ऑन द स्पॉट इंटरव्यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो आपको इसको बोलते हैं हम लोग कि विदाउट एनी प्रिपरेशन, कुछ भी हम लोग अचानक से दिमाग में जो आया वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू उसको बोलते हैं। फिर होता है कि फोकस इंटरव्यू। फोकस होता है बहुत इन डेप्थ की बात करते हैं हम लोग, कुछ एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बात करते हैं, ऐसे यहाँ पे हम लोग फोकस इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इन द टाइप ऑफ द इंटरव्यू, इन द टाइप ऑफ द इंटरव्यू, व्हाट एक्चुअली इंटरव्यू क्या करता है, इंटरव्यू इज फोकस टू अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। हम लोग रिस्पॉन्डेंट पे बहुत फोकस करते हैं, वी ट्राई टू फेच आउट सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मुद्दा क्या होता है कि इसमें हम लोग फोकस इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत छोटा सा होगा, क्वेश्चन क्या होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, एंड यू आर गिविंग द फुल फ्रीडम टू द रिस्पॉन्डेंट कि रिस्पॉन्डेंट कैन एक्सप्रेस दमसेल्फ। जैसे कोई बहुत एक कॉमन एग्जांपल हम देते हैं कि कॉलोनी में कोई क्राइम हो गया, पुलिस वाला आया, उसने पूछा कि व्हाट हैपेंड, और वो बोल के साइड में खड़ा हो गया। फिर बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना अपना रिव्यू, अपना अपना फीडबैक देते हैं। एक नॉर्मली एजम्पशन ये होती है कि लोग ज्यादा बोलेंगे, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ बोल के कुछ ना कुछ उसमें आपको क्रक्स मिल जाएगा, कुछ ना कुछ सर्टेन थिंग्स मिल जाएंगे, क्लू मिल जाएगा। तो फोकस इंटरव्यू हम लोग वहीं पर करते हैं जहां पर हम लोगों को कुछ सर्टेन कोई स्पेसिफिक मुद्दा निकालना होता है, इन डेप्थ इंटरव्यू टाइप का होता है, उसको हम लोग फोकस इंटरव्यू बोलते हैं। नॉन डायरेक्टिव, कहीं से कुछ भी, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है कहीं से कुछ भी पूछ लेना, मतलब देयर इज नो डायरेक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर और नॉन डायरेक्टिव में यही है कि अनस्ट्रक्चर में पहला क्वेश्चन कुछ होगा, सेकंड कुछ होगा, थर्ड कुछ होगा, थर्ड वाला पहले पूछ लिया, फोर्थ वाला पहले पूछ लिया, फर्स्ट वाला लास्ट में पूछ रहा है, बट पूछेंगे मुद्दे का ही, पूछेंगे आपकी फील्ड का ही। बट नॉन डायरेक्टिव में देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू, दे मे आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, कुछ भी आपकी फील्ड का नहीं पूछ रहा, बाहर कुछ पूछ रहा, उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। क्लियर? ये हो गया हमारे इंटरव्यू के मैथड्स। क्लियर है? अब आगे हम लोग बात करेंगे शेड्यूलिंग। क्या की बात करेंगे? शेड्यूलिंग की बात करेंगे हम लोग। शेड्यूलिंग का शेड्यूल होता है कि शेड्यूल्स आर बीइंग फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स। तो इन्यूमरेटर कौन होता है? जो रिसर्चर जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। आप क्वेश्चनियर और शेड्यूलिंग ऑलमोस्ट दोनों सेम चीजें हैं। तो शेड्यूलिंग और क्वेश्चनियर में कुछ कुछ स्लाइटली डिफरेंस है, वो समझ लीजिए आप। जैसे कि होता है कि यूजेस, दोनों का यूजेस सेम है। क्वेश्चनियर में क्या होता है कि रिस्पॉन्डेंट हिमसेल्फ रिकॉर्ड द आंसर ऑब्टेन्ड, पर शेड्यूलिंग में रिसर्चर इन्यूमरेटर, जैसे कि जो होता है कि हमने आपको क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप अपने आप से इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, बट रिसर्चर बस इसमें आपका शेड्यूलिंग क्या होता है, क्वेश्चन मेरे, वो जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास रहेगा, हम आपसे पूछेंगे, फिर हम टिक करेंगे। रिसर्चर के पास रहेगा, इन्यूमरेटर के पास रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूलिंग। यूजेस आर सेम, ठीक है। कॉस्टिंग, क्वेश्चनियर हमारा रिलेटिवली चीपर पड़ता है, क्योंकि एक बार में आपने यहां से बैठा इंसान यूएस में कोई बैठा हुआ, उसको भी क्वेश्चनियर भेज दिया, वो ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर देगा। बट यहाँ पर आपको एक बार में आप 1 लाख लोगों को मेल कर सकते हैं, एक बार में 1 लाख लोगों को, आपने कोई बैठे हुए एक ग्राउंड में 100 लोग एक साथ भेज दिया, सबने 5 मिनट में 100 क्वेश्चन बिल करके दे दिए, 100 लोगों ने अपना अपना। बट शेड्यूलिंग इज सो मच टाइम टेकिंग, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल अटेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए क्वेश्चनियर में हमारी नैरो, क्वेश्चनियर की वाइड कवरेज होती है, शेड्यूलिंग की नैरो कवरेज होती है, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चनियर में जो टाइम वो होता है हमारा, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स की बात करेंगे, वो हमारा लेस होता है, पर शेड्यूलिंग में आपका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए क्वेश्चनियर के जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, पर शेड्यूलिंग के रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑथेंटिक, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग। अब आगे हम लोग बात करेंगे सेल्स फोर्स ओपिनियन की, फिर बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस की। सेल्स फोर्स ओपिनियन क्या होता है? सेल्स फोर्स ओपिनियन होता है कि आपने कुछ टीम को, कुछ लोगों को
अपॉइंट किया 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को। पहले लोग आते नहीं थे, घर पे आते थे, जो मार्केट सर्वे करने आते थे, एक्वागार्ड वाला आ रहा था, यूरेका फोर्ब्स के लोग आते थे। अब बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयों वाले मेडिकल एमआर जितने होते हैं, एमआर का काम ये नहीं है केवल बेचना। टू सेल द मेडिसिन इज नॉट ओनली टास्क ऑफ द एमआर, they are also responsible for to create the brand awareness of that particular medicine, that particular prescriptions. So that is the only thing ki what actually we do call in a Salesforce opinions. Salesforce opinion में being a researcher, what actually we can do, we can allocate certain responsibilities, certain duties to the Salesforce person. They can collect the data on the behalf of you and they can hand over to you and you can analyze those data. That is called Salesforce opinion. फीडबैक आप लोगों को पता ही, आजकल सब जगह फीडबैक चलता है। भले गाड़ी के शोरूम की बात करिए, भले खाने का बात करिए, भले आप जोमेटो में डिलीवरी वाला आता है या ओला की बात करिए, यूबर की बात करिए, उसमें कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट हो ही रहा है, फीडबैक ले रहे हो। थ्रू मैकेनिकल डिवाइसेस, collecting the data through certain mechanical devices is called what we call मैकेनिकल डिवाइसेस। कि हमने एक कैमरा लगा दिया, उससे पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। बायोमेट्रिक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ, जो बायोमेट्रिक लगता है इसमें टाइम इन टाइम आउट आता है, उसमें डेटा कलेक्ट हो रहा है ना। महीने के लास्ट में आप रिपोर्ट निकाल देते हैं ना, कितने लोग टाइम से आए, कितने लोग टाइम से नहीं आए, ठीक है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस। तो वॉट एवर, ये कैमरा लगा दी, कैमरे से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वॉट एवर द डेटा वी आर कलेक्टिंग थ्रू द मैकेनिकल डिवाइसेस, या वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, या आपका बायोमेट्रिक्स है, कैमराज है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस। फिर होता है सेल्स फोर्स ओपिनियन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कुछ चीजें हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कुछ चीजें देखिए, उसमें क्या क्या है। पहला होता है WAT, वर्ड असॉर्टमेंट टेस्ट, वर्ड असॉर्टमेंट टेस्ट। फिर होता है कंप्लीशन, कंप्लीट ए सेंटेंस, कंप्लीशन। एक होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव। फिर होता है एक्सप्रेसिव। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। WAT क्या होता है? वर्ड असॉर्टमेंट टेस्ट क्या होता है कि हमने सर्टेन वर्ड दे दिए किसी इंसान को, रिस्पोंडेंट को, और दे कैन राइट सर्टेन थिंग्स ऑन उनके दिमाग में जो भी स्ट्राइक करेगा सबसे पहले, वट एवर द थिंग्स व्हिच इज स्ट्राइकिंग इन वेरी फर्स्ट टाइम टू द सर्टेन क्लाइंट या सर्टेन रिस्पोंडेंट, दे कैन राइट डाउन सर्टेन स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ दोज वर्ड। या कोई कुछ ब्रांड दे दिया, कुछ स्पेसिफिक हमने ब्रांड बताई, उसके बेसिस पे आपको दिमाग में क्या आ रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्ड असॉर्टमेंट टेस्ट। एक पर्टिकुलर वर्ड। कंप्लीशन, फिल द सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। कंस्ट्रक्शन, कि हमने कोई पिक्चर बना दिया आपको, उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखी है। आता है तो पहले न्यूज़पेपर में आता था, पूरा था, हमने कुछ पिक्चर डायग्राम कर दिया, उसमें घर भी दिख रहा है, पानी भी है, जंगल भी है, पेड़ पौधा सब दिख रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ those picture you are constructing certain stories, certain theories, that is called construction. Expressive में you are giving the full freedom to the respondent to express yourself, that is called expressive. So this is called primary data. फिर secondary data की हम लोग बात करते हैं। secondary data में कुछ भी आएगा, बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, कॉन्फ्रेंस पेपर हो गए, रिसर्च पेपर हो गए, जर्नल्स हो गए, थीसिस हो गई, या आपके कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए, बैलेंस शीट्स हो गई हमारी, ठीक है। तो जितनी भी हमारी जो whatever the data which is already available in the market and you are going to be analyze certain things on the basis of those data, that is called secondary data. तो ठीक है, तो secondary data collect करना सरल होता है because all the data which is already available in the market, so you don't need to do much effort to collect those data, ठीक है। So that is called secondary data. So I've been told you about the primary data. In a primary data, we have a 7-8 part, starting from the questionnaire. In a questionnaire, we have 5 types of questionnaire: structured questionnaire, unstructured questionnaire, okay, and pictorial, dichotomous. Sorry, in a questionnaire, we have an open-ended questionnaire and closed-ended questionnaire, multiple questionnaire, and dichotomous and pictorial. In observation, we have a structured observation, unstructured observation, controlled observation, participative observation, non-participative observation. The interview we have structure and unstructured, and the telephonic interview have, focus interview have, non-directive interview have. Now scheduling, I have been told you, scheduling and questionnaire both are the almost same, but in a scheduling में क्या होता है कि जो enumerator होता है, researcher तो खुद information fill करता है, पूछेंगे हम आपसे, fill करेंगे खुद। But in a questionnaire, you are handing over those questionnaire to the respondent. They can fill out themselves.
Then I have been told you the mechanical devices, I have been told you the projective techniques, and I have been told you sales for opinions and the feedback form. So this is all about today's lecture. If anyone is having any doubt, please do tell me. This is all about today's lecture. Any doubt, please do tell me. Any doubt? I'm very happy Deepavali to all of you. Probably by tomorrow there will not be any classes. If there will be class on the day by tomorrow, surely I'll inform you. Please do tell me anyone is having any doubt. प्लीज बताइए किसी को कोई डाउट हो किसी प्रकार का, जल्दी से बताइए, अदरवाइज क्लास खत्म करें आज का. Anyone is having any doubt, please do tell me. So once again, thank you so much for joining, and once again, happy Deepavali to all of you. Take care. Goodbye.